أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، ہم تیرے گناہگار بندے، تیرے خطاکار بندے، تیرے سیاہ کار بندے، اپنے خطاؤں کے، گناہوں کے، غفلتوں کے اور ندامتوں کے ٹوکرے اٹھائے آج کی بابرکت رات تیرے حضور بیٹھے ہیں۔ اے جلد راضی ہو جانے والے رب، ہم تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے تمام گناہوں، قدیم و جدید، پوشیدہ و ظاہر، اور ان گناہوں کو جو تو ہم سے بہتر جانتا ہے، معاف فرما۔ اے اللہ، ہماری تمام خطائیں، لغزشیں، نادانیاں، نافرمانیاں اور ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو جو ہم نے جان بوجھ کر کیے، بھول کر کیے، ہنسی مذاق میں کیے، بخش دے۔ بے شک تو عیبوں کو جاننے والا، عیبوں کو چھپانے والا اور سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہمارا وہ صبر نہیں جو حضرت ایوب علیہ السلام کا بیماری میں تھا، ہماری وہ تسبیح نہیں جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بیان کی، ہمارا وہ ایمان نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جاتے ہوئے تھا، اور ہمارا وہ یقین نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غار میں تھا۔ یا رب، ہمارے پاس کوئی بھی طاقت نہیں نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی سوائے تیری بابرکت ذات کے۔ ہم گندے ہیں، میلے ہیں، پر مالک تیرے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرما، ہم سے درگزر کا معاملہ فرما، ہمیں معاف فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ یا الہی، ہمیں اپنی اور دین کی محبت عطا فرما، اور اس شخص کی بھی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ایسے اعمال عطا فرما جو ہمیں تیری محبت تک پہنچا دیں۔ اے رب کائنات، اپنی محبت کو ہمارے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے، ہمیں اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے، دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے، اور جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دے تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دے۔ اے بہت مہربان رب، ہمیں شکر کرنے والا دل، تیرا ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں دنیا اور آخرت کی سلامتی عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا۔ یا الہی، ہمیں مفید علم، پاک حلال روزی اور مقبول عمل عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت، خدا ترسی اور پاک دامنی عطا فرما۔ اے پاک ذات، آج کی رات ہم پر اپنی رحمت اور مغفرت کے دروازے کھول دے، خیر اور سلامتی کے دروازے کھول دے، ہم پر اپنی نعمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دے۔ یا الہی، ہم پر قوت، محبتوں، علم اور رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، اپنے رزق کے راستے ہمارے لیے آسان کر دے، ہمیں ایسی جگہ سے رزق اور روزگار عطا فرما جہاں سے ہم گمان بھی نہ کر سکیں۔ اے اللہ، ہمارے رزق میں سب سے زیادہ کشادگی ہمارے بڑھاپے اور خاتمے کے وقت پر کرنا۔ اے پروردگار، تو ہر شے کا صاحب اختیار ہے، ہمارے سب معاملات تیرے سامنے آیا ہیں،
हमारे मामले से तुझ पर कुछ भी पोशीदा नहीं। तू हमारे मसाइल भी जानता है और हमारे वसाइल से भी वाकिफ है। हम कमजोर हैं, हमारी कोशिशों में कमी है और हमारी ख्वाहिशात हमारे वसाइल और हमारी ताकत से बहुत ज्यादा हैं। या अल्लाह, हमारी कमजोरी, कोशिश और वसाइल पर रहम फरमा। ए अल्लाह, हम मुसीबत ज़दा फकीर तुझसे मदद मांगते हैं। हमारी हर मामले में मदद फरमा। हमें कभी मुश्किलात में तन्हा नहीं छोड़ना। हमारी परेशानियां जैसी भी हों उनका खात्मा करना। ए अल्लाह, हमें बेरोजगारी, तंगदस्ती, रिस्क की कमी, भूख और अफलास से निजात दिला। या इलाही, हमें कर्ज से, रुसवाई से, बेबसी की इंतहा से, दुख, मुसीबत और हर आजमाइश से महफूज रखना। ए रब्बे अजीम, ये दुनिया वाले तो अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, पर तेरे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अल्लाह पाक, तू हमारे लिए आसमान से आसानियां, बरकतें और रहमतें नाजिल फरमा। हमें अपनी गैबी इमदाद अता फरमा। या अल्लाह, हमें कभी गिरने ना देना, ना किसी की नजरों में, ना किसी के कदमों में। हमें कभी किसी का मोहताज ना करना सवाए तेरी जात के। ए पाक परवरदिगार, तमाम मजबूर लोगों की मजबूरियां खत्म कर दे। ए अल्लाह, जो कर्जदार हैं उनसे कर्ज के बोझ को हटा दे। जो बेघर हैं उन्हें अपने घर जैसी जन्नत अता फरमा। ए बिगड़ी बनाने वाले, जो मुसीबत ज़दा हैं उनको तमाम मसाइब से निजात दिला। दिलो दिमाग और जिंदगी को सुकून अता फरमा। ए शिफा देने वाले, इस दुनिया में जितने भी लोग बीमार हैं उनके तमाम अमराज का खात्मा करना। सबको शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। ए अल्लाह पाक, हम सबको हर किस्म की जिस्मानी, रूहानी, छोटी बड़ी, मूजी, जानलेवा वबाओं और बीमारियों से महफूज रखना। हम सबको बेहतरीन सेहत जैसी नेमत और उम्र बिल खैर दराज फरमा। ए पाक रब, जिन बेवाओं के शोहर और यतीमों के बाप मनो मिट्टी तले दबे हैं, तू उनका आसरा और कफील बन जा। ए रब्बे रहीम, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद जैसी रहमत और नेमत से नवाज दे। ए अल्लाह, हम जानते हैं औलाद का होना ना होना इंसान के बस की बात नहीं, पर मौला, यही दुनिया वाले उन बहू बेटियों का जीना हराम कर देते हैं। सो अल्लाह, रहम फरमा उन बे औलाद जोड़ों पर। तेरे लिए कुछ नामुमकिन नहीं। अपनी कुदरत से सबको नेक और पाकीज़ा औलाद अता फरमा। या अल्लाह, हमारी औलादों को सालिहीन में से करना। उन्हें हर बुराई से बचा कर रखना। उनकी शख्सियत में मौजूद हर खामी का अजाला करना। उन्हें कभी आफातो बलियात में मुब्तला ना करना। उन्हें ईमान की दौलत से माला माल करना। उन्हें वालिदैन का फख्र व गरूर बनाना। बुढ़ापे में अपने वालिदैन का सहारा बनाना और अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बना देना। तमाम बच्चों को उनके दुनियावी और दीनी इम्तिहानात में कामयाबो कामरान करना। ए परवरदिगार, हर बहन, बेटी, बहू को सुखी संसार देना। वालिदैन अपनी बेटियों को दुनिया की हर चीज देते हैं, सिर्फ जो नहीं दे सकते वो है नसीब। अल्लाह पाक सब बहनों, बेटियों, बहुओं के अच्छे नसीब करना। ये सदा अपने घरों में हंसती बसती शाद आबाद रहें। माँ बाप के घरों में ये बेटियां शहजादियों की तरह रहती हैं। ए अल्लाह, ये अपने ससुरालों में भी राज करें। ए पाक परवरदिगार, हर बीवी को प्यार, मोहब्बत और सबसे अहम कदर और इज्जत करने वाले शोहर अता फरमा
और हर शोहर को भी नेक, ताबेदार, फर्मा बरदार और दुख सुख में साथ देने वाली बीवी अता फरमा। ए रब्बुल इज्जत, तमाम वालिदैन, औलाद, मियाँ बीवी, सास ससुर, बहू और दामाद, सबके दरमियान इत्तफाक, इत्तेहाद, प्यार और मोहब्बत को बढ़ा दे। घरेलू झगड़ों को खत्म करके हर घर को अमनो सलामती का गहवारा बना दे। या इलाही, जो लड़कियां लड़के रिश्ते ना मिलने की वजह से परेशान हैं और अपने घरों में बैठे हैं, तो अपने रहमो करम से, अपने गैबी वसीलों से उनके लिए बेहतरीन रिश्तों का इंतजाम कर दे। उन्हें बेहतरीन ज़ोज अता फरमा। या इलाही, हमारे गमगुसार और बहुत प्यार करने वाले माँ बाप का साया उल्फत व शफकत ताहयात हमारे सरों पर कायमो दाइम रखना। ऐ अल्लाह, हमारे अंदर जितनी खूबियां हैं वो हमारे वालिदैन की वजह से हैं, और हमारे अंदर जितनी बुराइयां हैं वो हमारी अपनी वजह से हैं। बस ऐ अल्लाह, हमारी वजह से हमारे वालिदैन की आखिरत में पकड़ ना करना। या इलाही, हमारे वालिदैन को माफ फरमाना, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमा, और हमें उनकी खिदमत की सआदत अता फरमा। या अल्लाह, जिनके वालिदैन, वालिद या वालिदा या दोनों वफात फरमा गए हैं, उनकी कब्र की मंजिलें आसान फरमा, उनकी कब्रों को पुरनूर कर दे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा, और उन्हें अपने महबूब बंदों की सफ में रखना। ए रब्बुल इज्जत, जो बाप, भाई, बेटे, माएं, बहन, बेटियां परदेस में रोजगार के बाइस, तालीम के लिए या शादियां होके मुकीम हैं, उन सब को अपनी खास हिफाजत और अमान की चारदीवारी में पनाह अता फरमा। उन पर परदेस की तन्हाइयों, सख्तियों और सौबतों और परेशानियों को आसान कर दे। उन्हें वहां बेहतरीन रोजगार और इल्मे नाफे अता फरमा। ए जिनो इंस के मालिक, हमें नफ्स और शैतान के शर से बचाना, हमें हर तरह के शरीर, इंसानों और जिन्नात के शर से महफूज रखना, हमें अचानक की मौत से, अर्जो समा की आफात से, हादसात और बलियात से, जादू से, नजर बद और असरात से महफूज रखना। ऐ अल्लाह पाक, हमें बेदीनी से, बेहयाई से, बेहूदगी और बेपर्दगी से महफूज रखना। हमें हर जालिम हुक्मरान और जमा जत्थे वाले मगरूर से पनाह देना। या अल्लाह, हमें जालिम हासिद दुश्मनों के मकर से महफूज रखना, और उनके मकरो फरेब के तीर उन्हीं के सीनों की तरफ पलट देना, और उनके सामने एक दीवार खड़ी कर देना, यहां तक कि उनकी आंखों को हमें देखने से नाबीना और उनके कानों को हमारा जिक्र सुनने से बहरा कर दे, और उनके दिलों पर कुफल चढ़ा दे, ताकि उन्हें हमारा ख्याल ना आए, और हमारे बारे में कुछ कहने सुनने से उनकी जुबानों को गूंग कर दे। उनकी गर्दनों में जिल्लत का तोक डाल के उनका गरूर और तकब्बुर खत्म कर दे, और हमें उन दुश्मनों की जरर रसानी, शरपसंदी, लाना जनी, गीबत, ऐब जोई, हसद, दुश्मनी और उनके फंदों, हथकंडों, प्यादों और सवारों से अपने खास हिफ्ज़ो अमान में रख लेना। यकीनन तू गलबा व इक़्तिदार का मालिक है। या अरहमुर राहिमीन, हमें दीन में इस्तकामत अता फरमा, हमें सच्ची और खालिस इबादत करने की तौफीक अता फरमा। या इलाही, हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में हज और उम्रा करने की तौफीक और सआदत अता फरमा, और हमारे इस शौक को पूरा करने के लिए खुद से गैबी वसीले बना। ए अल्लाह पाक, हम आस लगाए बैठे हैं
एक बार तो काबा देखें, तेरे शहर की दिलकश फिजाओं के जलवे देखें। हम आबे जमजम के प्यासे हैं मौला, एक बार तो उसको पी कर देखें। या अल्लाह, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मदीना देखें, सब्ज गुंबद का नजारा करें और सुनहरी जालियों को चूमें। ए अल्लाह पाक, हमें जिंदगी में सफेद पोशी, कब्र में कफन पोशी और आखिरत में पर्दा पोशी अता फरमा। ए अल्लाह, हमें मौत से पहले की तौबा अता फरमा। या अल्लाह, हमारी मौत को हम पर आसान कर देना और हमारा खात्मा ईमान पर करना। ए अल्लाह, हम तेरी पनाह में आते हैं उससे कि शैतान सुकराते मौत में हमारी अक्ल को गुमराह कर दे। ए मेहरबान रब, अंधेरी रात जब कब्र में होगी तो उसको उजाले में बदल देना। कब्र की वहशत और उसके आजाब से अपनी अमान में रखना। हमारी कब्रों को दरूदे पाक और कलमाए पाक की रोशनी से मुनव्वर करना। दीदारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाना। हम तो बहुत गुनहगार हैं मौला, पर तेरी शान तो बहुत बुलंद है। तू अपनी शान के मुताबिक बख्शिश और मगफरत फरमाना। या अल्लाह, हमें रोजे हशर की घबराहट से बचाना, अपने अर्शे अजीम का साया अता फरमाना। ए अल्लाह, उस अजीम आजमाइश के रोज या उम्मती की मुबारक आवाज को हमारी समात का मुकद्दर कर देना। साकिए कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से वो प्याला अता फरमाना जो हमारी प्यास को हमेशा के लिए बुझा डाले। ए रब्बे जुल जलाल, जब हम अपने नफ्स के साथ तेरे हजूर पेश किए जाए ना, तो हमारा हिसाब आसान फरमाना। हमारे गुनाहों का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुनिया वालों से पर्दा कर देना। हमारे अमाल दाहिने हाथ को अता फरमाना। हमारे तमाम गुनाहों को बख्श देना। ए अल्लाह पाक, हमें पुल सरात से बचा लेना और नारे दोज़ख को हम पर हराम कर देना। या गफ्फार, हमें मकदूर करना कि हम खुद को वहां पाएं कि जहां जन्नत के दरवाजे खोले जाएं, कि जहां हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी की नकील थामे उसमें दाखिल हों, और वहां कि जहां जब जश्न मनाया जाए, जब नगमे गाए जाएं। या अल्लाह, हमें हमारे वालिदैन, अहलो अयाल, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, हमारे हर उस जानने वाले को जिसको हमने कभी एक लम्हे के लिए भी जाना, और इस दुआ के सुनने वालों को, इस दुआ को आगे से आगे फैलाने वालों को, हम सबको उन खुशनसीबों में करना जिनको जन्नत में फिर कभी कोई गम, कोई तकलीफ और कोई थकन हरगिज न छुएगी। ए हमारे सोहने रब, ए कुन फयाकून के मालिक, ए 70 माओं से बढ़कर अपने बंदे से प्यार करने वाले, तुझे तेरी रहीमी का वास्ता, तुझे तेरी करीमी का वास्ता, तेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, इस मुबारक रात के सदके हमारी तमाम हाजतों को, हमारी तमाम दुआओं को जो हमने मांगी और जो मांगने से रह गए, सबको अपने बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा, क्योंकि तेरे कमजोर बंदों के इख्तियार में सवाए दुआ के कुछ भी नहीं। आमीन या रब्बुल आलमीन।